बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम 8वें चैप्टर को डिस्कस करते हैं। अब ये 8वां चैप्टर हमारे पास है, ग्राफ्स का चैप्टर है, लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये हमारे पास चैप्टर है, इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन है इसका। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अ टेक्निक फॉर सॉल्विंग फर्स्ट degree equations containing a single variable, which are also known as linear equations. Recall that the solution set for a linear equation is a real number. In this unit we will learn how to graphically represent an ordered pair which consists of two real numbers, just as a real number is associated with a point on a number line. An ordered pair is associated with a point in two-dimensional plane called Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system. Also, we will learn the conversion graphs of different quantities and the solution set of two linear equations in two variables by graphical method. ठीक है। Identifying pair of real numbers as an ordered pair, Cartesian plane and linear graphs. Identification of pair of real numbers, let a is equal to 1 2 and b is equal to 3 4 are any two sets. The Cartesian product of a and b denoted by a cross b is given as a cross b is equal to 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 and 2 4, which shows that each element of a cross b is an ordered pair. If we take the Cartesian product of the real number set to itself, then it is defined as r cross r is equal to a comma b, such that a and b belongs to real number. Next देखते हैं जी। Each element of R cross R is an ordered pair A B, where both A and B are real numbers. Under root 2, under root 3, under root 5, minus 7, 2, 3, minus 1, 4, etc. are the examples of the ordered pair. Recognizing ordered pair of real numbers through examples. Example: let a rectangular box is filled with balls of equal size as shown in the figure. Then the pair 3 4. Then the pair 3 4. This is 1 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 and 2 4, 3 1 3 2 3 3 and 3 4. Then the pair 3 4 represents the position of the ball, which is in the third row and fourth column in the box. Example number 2: if a farmer has planted trees in the garden at equal distance, then 3 5 represent the tree located in the third row and the fifth column in the garden. Cartesian plane. A rectangular coordinate system is formed by two perpendicular number lines, one horizontal, one vertical, that intersect at a 0 point of each line. The point of intersection 0 0 is called the origin. The two lines are called coordinate axis or simply axis. The axis determine a plane called rectangular or Cartesian plane. The two axes divide the plane into four regions called quadrants. The quadrants are numbered counterclockwise from 1 to 4. Each point in the plane can be identified by the pair of numbers called an ordered pair. The first number of the pair measures a horizontal distance and is called the abscissa. The second abscissa. The second number of the pair measures vertical distance and it is called ordinate. Abscissa and ordinate. The coordinates of a point are the numbers in the ordered pair associated with the point. The abscissa is called the first coordinate of the ordered pair or x coordinate, and the ordinate is also called the second coordinate of the
ordered pair or y coordinate. In the first quadrant, x is greater than 0, y is greater than 0, both are positive. In the second quadrant, x is less than 0 and y is greater than 0. In the third quadrant, x is less than 0 and y is less than 0, both are negative. In the fourth quadrant, x is greater than 0 and y less than. This is negative, this is positive, this is negative, this is negative, this is negative, this is positive, this is positive and this is positive. Now let's see. जब आप ये दो लाइनें इस तरह ड्रा कर देते हैं, एक आप ये वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं और एक आप इस तरह ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं, तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि आपके पास 4 हिस्से बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो x है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये -x है। अब यहाँ से यहाँ तक ये y क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, y नेगेटिव है। ठीक है, अब ये पहला क्वाड्रेंट है, अब x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, अब ये y जो है ये पॉजिटिव है और x जो है वो नेगेटिव है, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0। अब इसमें दोनों नेगेटिव हैं, x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0। अब इसमें y नेगेटिव है, y इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। इस तरह यहाँ पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अब देखें पहला क्वाड्रेंट है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ठीक है, y पॉजिटिव x नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, y नेगेटिव x पॉजिटिव। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब ये जो अब आपके पास कोई भी ऑर्डर पेयर होगा, 2 है या 2 4 है। अब ये पहला ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये पहला ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा है। पहला जो होगा वो हमेशा x होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, y होगा। ठीक है, अब देखें आगे, लोकेटिंग अ पॉइंट। अब आपने पॉइंट कैसे लोकेट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आपने कोई भी जो है पॉइंट जो है वो कैसे लोकेट करना है कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखते हैं इसको। अभी आपके पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया आपके पास ये। ठीक है, ये x है, ये x नेगेटिव है, ये y है और ये y नेगेटिव है, ये 1 ये 2 ये 3, ये -1 ये -2 ये -3, ये 1 ये 2 और ये 3। अब देखें कोई भी आपके पास पॉइंट है, लेट सपोज मैं कहता हूँ 1 है और 3 है। ठीक है, अब ये पहला x कोऑर्डिनेट, ये x होता है और ये क्या होता है, ये y होता है। अब x क्या है, 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव है। अब देखें 1 0 से 1, ये 1 आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आप देखें ये दूसरा जो है वो 3 है। अब 3 गिने 1 2 और 3, ये आपके पास ये इधर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने कोई भी पॉइंट है -3 और -2, अब देखें एक भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, -3 ये x है और ये आपके पास क्या है, y है। अब x देखें -3 1 -1 -2 -3, ये आपके पास आ गया और -2 किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो ये आपके पास ये 1 ये माइनस, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास -3 और -2 आ गया और ये आपके पास क्या आ गया था, 1 और 3। इसी तरह आप किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें लोकेटिंग और ग्राफिंग और प्लॉटिंग एन ऑर्डर्ड पेयर इन अ प्लेन, मेजर्स प्लेसिंग अ डॉट एट द
location given by the ordered pair. The graph of an ordered pair is the dot drawn at the coordinate of the point in the plane. The point whose coordinates are 3 4 is graphed in the figure at the right. अब देखें ये 3 4 पेयर है, 3 4 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब देखें x क्या है 3 है, तो यहाँ से 1 2 3 ये गया और दूसरा क्या है 4 है, 1 2 3 4, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल है, डिटरमाइन द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, मेंशन द कोऑर्डिनेट इन विच ईच लाइज, आल्सो प्लॉट द पॉइंट्स। अब इन सारे पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये आपके पास ये एक आ गया x, y आ गया, ये आपके पास x आ गया। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1 ना सॉरी ये 1 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5। इसी तरह ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। अब देखें, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब देखें, पहला पॉइंट है 3 1 3 1, x क्या है 3 है और y क्या है 1 है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं। देखें 0 0 इधर 0 आता है, 1 2 3, ये 3 आ गया आपके पास। अब 1, ये 1 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास आ गया जी 3 और 1। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसी तरह -2 और -4, ये -2, ये देखें ये -2 आ गया और -4 किधर आ गया, ये आपके पास ये -4 आ गया, ये -2 और ये -4 आपके पास आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। अब 4 और 0, ये आपके पास 4 और 0 इधर ही आ जाएगा। ये आपके पास ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, फिर उसके बाद 1 और -3, 1 आपके पास ये आ गया और -3 किधर आ गया, ये आ गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ग्राफ एंड लेबल द पॉइंट्स। इसी तरह आप इसको भी जो है वो ग्राफ एंड लेबल द पॉइंट्स ग्राफ कर लेंगे। -3 और 5, -3 और 5 आपके पास ये -3 और 5 आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। इसके बाद 4 और 3, ये 4 और 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 3 और 4, ये 3 और 4 आपके पास आ गया। -4 और -2, ये -4 और -2 आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 और -4, 3 और -4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 0 और 4, 0 और 4 आपके पास कहाँ आ जाएगा, ये 0 और ये 4, ये आपके पास ये आ गया। फिर -3 और 0, -3 और 0 ये आ गया आपके पास। 0 और 0 ये ओरिजिन में आ गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, द पॉइंट्स A B C and D आर शोन इन द फिगर ग्राफ, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो इनके आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लेने। इधर से आपने गिनना है 1 2 3 4 5 6 जो भी है, 1 2 3 4 5 जो भी है वो इधर आप लिख लें। x को पहले लिख लें, y को बाद में लिख लें, जितना भी है। ठीक है, फिर इसने सारे सब के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अभी ये 5 और 4 है, यहाँ से ये 5 है और यहाँ से ये 4 है। -6 और -5, ये -6 है और ये -5, ये पॉइंट आ गया। फिर 3 और -6, ये 3 और -6 ये आपके पास आ गया। ठीक है, फिर 6 और 0, ये 6 आ गया और ये 0 आ गया आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 5 1 एंड -3 और -4। तो पहले उसने पॉइंट लोकेट किया 5 और 1, फिर उसके बाद -3 और -4 दोनों को उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। फिर उसके बाद ये ट्राइंगल ड्रॉ करेगा जी। अब देखें, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस वन दिस वन दिस वन। तो सबसे पहले आपने पॉइंट ड्रॉ कर लेने। -2 और 3 आ गया, ड्रॉ हो गया। 4 और 2 ये आपके पास आ गया। फिर 1 और -3 आपके पास आ गया। तीनों को आप जोड़ लें तो आपके पास ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, ड्रॉ अ पैरेललोग्राम बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया 0, फिर ये A आ गया। ठीक है, फिर ये आपके पास B आ गया, फिर ये आपके पास C आ गया। चारों को आप जोड़ लें तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, पैरेललोग्राम बन जाएगा। सिमिलरली ड्रॉ अ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को ड्रॉ करें। ठीक है,
पॉइंट्स को ड्रा करके आप उनको ज्वाइन कर ले तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखते हैं। डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है, ये एक्स 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 है, ये वाई है, ये। फिर उसके बाद मेंशन द कोऑर्डिनेट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज। अब देखें, ये पहला कोऑर्डिनेट है फर्स्ट, ये क्या है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपके पास फोर्थ है। इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव पहले में। दूसरे में क्या है जी, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। इसमें क्या है आपके पास, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई जो है वो आपके पास क्या है जी, नेगेटिव। ठीक है, अब देखें पहला पॉइंट है, ये पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये पहला जो है वो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन द प्लेन। तो इन पॉइंट्स को आप इजीली जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ के जरिए आप इन सबको क्या करने हैं, प्लॉट कर दें। इनको भी आप प्लॉट कर सकते हैं, इनको भी आप प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स एसोसिएटेड विद द ऑर्डर पेयर। इन सारे पॉइंट्स को भी आप प्लॉट इजीली कर सकते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी एंड डी इन द गिवन पॉइंट। तो ए बी सी और डी जिधर जिधर उनके कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने लिख लेना है। इसमें ये नजर अच्छी तरह नहीं आ रहे, नहीं तो मैं आपको ड्रा करके बता देता। ठीक है, तो जो जो पॉइंट्स हैं उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने ये पॉइंट ड्रा करना है, ये पॉइंट ड्रा करना है, दोनों को आपने मिला लेना है लाइन सेगमेंट से। ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये पॉइंट ड्रा करना है, ये पॉइंट ड्रा करना है और ये पॉइंट ड्रा करना है। तीनों पॉइंट्स को जोड़ लेना है तो आपके पास क्या बन जाएगी जी, ट्राइंगल बन जाएगी। इसको बना लेते हैं, देखते हैं। ये आपके पास ये आ गया, ये आ गया। अब देखें इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आ गया। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब देखें पहला पॉइंट क्या है, 5 और 7। 5 और 7 को ड्रा करें। 5 और 7, 5 ये आ गया और 7 किधर आ गया, ये 5। 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखें तो ये आपके पास 5 और 7 ए पॉइंट आ गया, 5 और 7। फिर उसके बाद 8 और -3, 8 और -3, 8 ये 8 आ गया और -3 आपके पास किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया, 8 और -3, ये बी पॉइंट आ गया। फिर सिमिलरली सी है 9 और 4, ये 9 आ गया आपके पास और ये आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास। तो ये इसको इधर से जोड़ लें, इसको इसके साथ जोड़ लें और फिर इसको इसके साथ जोड़ लें। तो ये आपके पास क्या बन गई है जी, ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, इसी तरह आप ये जो है ड्रा पैरेललोग्राम, ये भी इसको भी बना सकते हैं। चारों पॉइंट्स ड्रा करके ज्वाइन द पॉइंट्स दिस टू ड्रॉ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर भी आप बना सकते हैं। बाय ड्राइंग द ग्राफ शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। तो इन पॉइंट्स को आप ड्रा करें, इनको आप ज्वाइन करें तो इनसे एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।